السلام علیکم دوستو، داستان کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیوں پر مبنی ایمان فروشوں کی داستان ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ داستان کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ 2 روز بعد جمعہ تھا۔ قاہرہ کی جامع مسجد کے خطیب کو عیسیٰ الحکاری فقیہ نے کہہ دیا تھا کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ خطیب ترک تھے جن کا پورا نام تاریخ میں محفوظ نہیں۔ وہ امیر العالم کے نام سے مشہور تھے۔ اس دور کے دستاویزی ثبوت ایسے بھی ملے ہیں جن کے مطابق خطیب امیر العالم نے کئی بار اس بدعت کو ختم کرنے کا عزم کا اظہار کیا تھا، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو امیر العالم نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس بدعت کے خاتمے کے احکام جاری کریں، اور 2 واقع نگار اس کا صحرا عیسیٰ الحکاری فقیہ کے سر باندھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ منصوبہ خطیب امیر العالم اور مذہبی امور کے مشیر عیسیٰ الحکاری فقیہ کے پیش نظر بھی ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی کی گفتگو کی جو دستاویزات ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیرانہ اقدام سلطان ایوبی کا ہی تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سچے مسلمان موجود تھے۔ خطیب امیر العالم نے خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا۔ جامع مسجد میں صلاح الدین ایوبی درمیانی صفوں میں موجود تھا۔ علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا تھا۔ سلطان ایوبی کے متعدد دیگر مشیر اور معتمد بکھر کر عوام میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ان کا رد عمل بھانپ سکیں۔ علی بن سفیان کے مخبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی۔ خلیفہ کا نام خطبے سے غائب کرنا ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ خلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا۔ اس کا ارتکاب کر دیا گیا۔ سربراہوں میں سے اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ العاضد تھا۔ نماز کے بعد سلطان ایوبی اٹھا، خطیب کے پاس گیا، ان سے مصافحہ کیا، ان کے چغے کا بوسہ لیا اور کہا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ خطیب امیر العالم نے جواب دیا، یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ واپس چند قدم چل کر سلطان ایوبی رک گیا اور خطیب کے قریب جا کر کہا، اگر آپ کو خلیفہ کا بلاوا آ جائے تو اس کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آ جائیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ امیر العالم نے کہا کہ اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھیں تو عرض کروں کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق گوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلا بھگتوں گا، میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا۔ خلیفہ نے بلایا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ میں نے خلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے حذف کیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شام کے بعد صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان، بہاؤدین شداد اور چند ایک اور مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی ایسی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے 2-3 جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا تھا، یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ان میں سے 4-5 نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے۔ عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہٰذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ اس لب لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاصد کو الصبح روانہ کر دیا جائے جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے۔ اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چوکنا کر دیا جائے، وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا سر چڑھا نائب سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ اس رات خلیفہ کی محل عیش و طرب میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ اسے حسن بن صباح کے حشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روزمرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور ارارہ کے طلسماتی حسن اور ناز و ادا میں گم تھا۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں سے اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے۔ ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں خواب آور سفوف بھی ملا دیا۔ اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کرتی تھی۔
उसे सुलाकर और कंदीलें बुझाकर वो कमरे से निकल गई। वो अपने मखसूस कमरे की तरफ जा रही थी जिसमें रज्जब रात को चोरी छुपे उसके पास आया करता था। वो कमरे में दाखिल हुई थी कि किवाड़ों के पीछे से किसी ने उस पर कंबल फेंका। उसकी आवाज भी न निकलने पाई थी कि उसके मुंह पर, जहां पहले ही कंबल लिपट गया था, एक और कपड़ा बांध दिया गया। उसे किसी ने कंधों पर डाला और कमरे से निकल गया। ये 2 आदमी थे। वो महल की भूल भुलैयों और चोर रास्तों से वाकिफ मालूम होते थे। वो अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ गए। ऊपर से उन्होंने रस्सा बांधकर नीचे लटकाया। लड़की को कंधों पर डाले वो आदमी रस्से से नीचे उतर गया। उसके पीछे दूसरा उतरा और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। कुछ दूर 4 घोड़े खड़े थे और इनके पास 2 आदमी बैठे हुए थे। इन्होंने अपने साथियों को अंधेरे में आते देखा और ये भी देखा कि एक ने कंधे पर कुछ उठा रखा है। वो घोड़ों को आगे ले गए। सब घोड़ों पर सवार हो गए। एक सवार ने लड़की को अपने आगे डाल लिया। इनमें से किसी ने कहा, घोड़ों को अभी दौड़ाना नहीं, टापों की आवाज सारे शहर को जगा देंगे। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और शहर से निकल गए। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का काम है। अमीर मिस्र के सिवा ऐसी जुर्रत और कोई नहीं कर सकता। उसके सिवा और हो ही कौन सकता है। कसरे खिलाफत में यही शोरो गुआ बपा था कि उम्मे अर्रारा को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अगवा कराया है। रज्जब वापस आ गया था। महल के कोने कोने की तलाशी ली जा चुकी थी। मुहाफिज दस्ता कमानदारों के अताब का निशाना बना हुआ था। खुद कमानदार भी सिपाहियों की तरह थर थर कांप रहे थे। एक लड़की का अगवा मामूली वारदात नहीं थी और लड़की भी ऐसी जिसे खलीफा हरम का हीरा समझता था। महल के पिछवाड़े एक रस्सा लटक रहा था। जमीन पर पांव के निशान थे जो थोड़ी दूर जाकर घोड़ों के निशानात में खत्म हो गए थे। इनसे यह सबूत मिल गया था कि लड़की को रस्से से उतारा गया है। इस शक का इजहार भी किया गया कि लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है। खलीफा ने इस शक को मुस्तरद कर दिया। वो कहता था कि उम्मे अर्रारा उस पर जान छिड़कती थी। रज्जब ने अल आजिद से कहा, यह सलाहुद्दीन अय्यूबी का काम है। कसर खिलाफत में हर किसी की जबान पर यही अल्फाज हैं कि उसके सिवा और कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। हर किसी के कानों में ये अल्फाज रज्जब ने ही डाले थे। उसे जो ही उम्मे अर्रारा की गुमशुदगी की इत्तला मिली थी, उसने सारे महल में घूम फिरकर हर किसी से लड़की के मुताल्लिक पूछा और हर किसी से कहा था, यह सुल्तान अय्यूबी का काम है। कसर सदारत के आला हुकाम से अदना मुलाजिम तक इन्हीं अल्फाज को दोहराए चले जा रहे थे। और जब ये अल्फाज खलीफा अल आजिद के कानों में पड़े तो उसने जर्रा भर सोचने की जरूरत न समझी कि ये इल्जाम बेबुनियाद हो सकता है। उसके कानों में ये तो पहले ही डाला जा चुका था कि सुल्तान अय्यूबी औरतों का शहदाई है। उम्मे अर्रारा ने उसे ये बताया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हरम की 4 लड़कियों को खराब कर चुका है। खलीफा ने उसी वक्त अपने खुसूसी कासिद को बुलाया और उसे कहा कि अमीर मिस्र के पास जाओ और उसे कहो कि पर्दे में लड़की वापस कर दो। मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। जिस वक्त खलीफा कासिद को ये पैगाम दे रहा था, उस वक्त काहिरा से 10-12 मील दूर 3 शुतर सवार काहिरा की तरफ खिरामा खिरामा आ रहे थे। वो मिस्र की फौज के गश्ती संतरी थे। मिस्र के सियासी हालात चूंकि अच्छे नहीं थे, जासूसों और तखरीबकारों की सरगर्मियां रुकने की बजाय बढ़ती जा रही थीं। सुल्तान अय्यूबी को अच्छी तरह मालूम था कि मुल्क में गद्दारी और बगावत की चिंगारियां भी सुलग रही हैं। उस सूडानी फौज की तरफ से जिसे उसने बरतरफ कर दिया था, खतरा पूरी तरह टला नहीं था। इस फौज के कमांडार, ओहदेदार और सिपाही तजुर्बेकार अस्करी थे। किसी भी वक्त मुल्क के लिए खतरा बन सकते थे। सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन ने सलीबियों से दोस्ताना कर रखा था। उनके जासूसों को वो पनाह, अड्डा और मदद मुहैया करते थे। इन खतरात के पेश नजर दारुल हुकूमत से बहुत दूर दूर और हर तरफ फौज के चंद एक दस्ते रखे गए थे। इनके गश्ती संतरी दिन रात सहराओं और टीलों टेकरियों के इलाकों में घोड़ों और ऊंटों पर गश्त करते रहते थे ताकि आने वाले खतरे की इत्तला कबल अज वक्त दी जा सके। वो 3 शुतर सवार इन्हीं दस्तों के गश्ती संतरी थे जो अपनी जिम्मेदारी के इलाके में गश्त करके वापस आ रहे थे। आगे मिट्टी और पत्थरों की पहाड़ी और चट्टानों का वसी इलाका था। एक वादी में से गुजर रहे थे कि उन्हें किसी औरत की आहो बुका की आवाज सुनाई दी। साथ ही किसी मर्द की आवाजें भी सुनाई थीं। इनसे साफ पता चलता था कि लड़की पर जबरदस्ती की जा रही है। एक शुतर सवार उतरा और उस चट्टान पर चढ़ गया जिसकी दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थीं। उसने छुप कर देखा, उधर 4 घोड़े खड़े थे और 4 आदमी भी थे। चारों सूडानी हबशी थे। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी जो दौड़ी जा रही थी। एक हबशी ने उसे पकड़ लिया और उसे बाजुओं में दबोच कर उठाया और उसे अपने साथियों के दरमियान खड़ा करके उसके सामने घुटनों के बल हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ बांध कर कहा, तुम मुकद्दस लड़की हो, अपने आप को तकलीफ में डालकर हमें गुनाहगार न करो। देवताओं का कहर हमें जला डालेगा या हमें पत्थर बना देगा। लड़की ने चिल्लाकर कहा, मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारे देवताओं पर लानत भेजती हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको खलीफा के कुत्तों से बोटी बोटी करा दूंगी। एक हबशी ने उसे कहा, तुम अब खलीफा की मिल्कियत नहीं, अब तुम इस देवता की मिल्कियत हो जिसके हाथ में आसमान की बिजलियों का कहर, नागों का जहर और शेरों की ताकत है। उसने तुम्हें पसंद कर लिया है।
अब जो कोई तुम्हें उससे छीनने की कोशिश करेगा सहरा की रेत जलाकर राख कर देगी। एक हबशी ने दूसरे से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ न रुको, मगर तुम आराम करना चाहते थे। इसे बंधा हुआ चले चलते और शाम से पहले पहले मंजिल पर पहुंच जाते। हबशी ने जवाब दिया, क्या हमारे घोड़े थक नहीं गए थे? हम सारी रात के जागे हुए हैं, इसे बांध दो और चलो। उसने लड़की को दबोच लिया। अचानक उसकी पीठ में एक तीर उतर गया। उसकी गिरफ्त लड़की से ढीली हो गई। लड़की उसे धक्का देकर भागने लगी तो दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर घसीटा और घोड़ों की ओट में हो गया। एक और तीर आया जो उसकी गर्दन में लगा। वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। जिस आदमी ने लड़की को पकड़ा हुआ था वो घोड़े की बाग पकड़कर लड़की और घोड़े को नशेबी जगह ले गया। एक हबशी और भी रह गया था, वो भी दौड़कर नशेब में उतर गया। इस पर उस शुतर सवार संतरी ने तीर चलाए जो चट्टान पर चढ़ गया था। उसने बाद में जो बयान दिया उसमें उसने कहा कि वो देवताओं के नाम से डर गया था, लेकिन लड़की ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं देवताओं पर लानत भेजती हूँ तो संतरी का ईमान बेदार हो गया। लड़की ने जब खलीफा का नाम लिया तो संतरी समझ गया कि ये हरम की लड़की है। इसका लिबास, इसकी शक्ल सूरत और इसका डील डोल बता रही थी कि ये मामूली दर्जे की लड़की नहीं। इसे अगवा किया जा रहा है और इसे सूडान में ले जाकर फरोख्त किया जाएगा। संतरी को ये मालूम था कि थोड़े दिनों बाद सूडानी हबशियों का एक मेला लगने वाला है जिसमें लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है। फौज को सुल्तान अयूबी ने यह हुक्म दे रखा था कि औरत की इज्जत की हिफाजत की जाए। एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए 1 दर्जन आदमियों के कत्ल की भी इजाजत थी। संतरी ने ये सारी बातें सामने रखकर फैसला कर लिया कि इस लड़की को बचाना है। उसने 2 तीर चलाए और 2 हबशी मार डाले। उसने गलती ये की कि बाकी 2 हबशियों को पकड़ने के लिए नीचे उतर आया। अपने ऊंट पर सवार हुआ। अपने साथियों को बताया कि बुर्दा फरोशों का ताकुब करना है। वो तीनों ऊंट को दौड़ाते दूसरी तरफ गए मगर उन्हें चट्टान का चक्कर काट कर जाना पड़ा। उसने ये भी ना सोचा कि ऊंट घोड़े का ताकुब कर सकता है या नहीं। इन तीनों में से तीर कमान सिर्फ इसी संतरी के पास था, बाकी 2 के पास बर्छियां और तलवारें थीं। वो जब उस जगह पहुंचे जहां लड़की और हबशियों को देखा गया था तो वहां 2 लाशों के सिवा कुछ भी न था। सूडानी हबशी लड़की को भी ले गए थे और अपने मरे हुए साथियों के घोड़े भी। शुतर सवारों ने ताकुब में ऊंट दौड़ाए, लेकिन वो टीलों और चट्टानों का इलाका था। रास्ता घूमता और मुड़ता था। उन्हें भागते घोड़ों के टापू सुनाई दे रहे थे जो दूर हटते गए और खामोश हो गए। शुतर सवारों ने दोनों लाशें ऊंटों पर लादी और वापस आ गए। उन्हें मालूम था कि ये लाशें किसकी हैं। ये आम किस्म के बुर्दा फरोशों की भी हो सकती थीं। इन्हें उठा लाना जरूरी न था, लेकिन लड़की खलीफा की मालूम होती थी, इसलिए लाशें उठाना जरूरी समझा गया था ताकि ये मालूम हो सके कि अगवा करने वाले कौन हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशानी और गुस्से के आलम में टहल रहा था। कमरे में उसके मुशीर और मोतमिद बैठे थे। ये उसके दोस्त भी थे। वो सर झुकाए बैठे हुए थे। सुल्तान अय्यूबी अपने आप को हमेशा काबू में रखता था। वो कभी जज्बाती नहीं हुआ था। गुस्सा पी जाया करता था और जहन को पूरी तरह काबू में रखकर सोचा और फैसला किया करता था। ऐसे हालात ने भी उसे आजमाया था जिनमें जाबिर जंगजू भी हथियार डाल दिया करते हैं। वो महासरों में भी लड़ा था और इस हाल में भी महासरे में रहा था कि उसके सिपाहियों के हौसले टूट गए थे। कले में खाने पीने के लिए भी कुछ न रहा था और सिपाहियों के तरकश भी खाली हो गए थे। उसके सिपाही इस इंतजार में थे कि वो हथियार डालकर उन्हें इस अजियत और मौत से बचा लेगा। लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने सिर्फ अपना हौसला ही मजबूत न रखा बल्कि सिपाहियों में भी नई रूह फूंक दी। मगर उस रोज सुल्तान अय्यूबी को अपने ऊपर काबू न रहा था। चेहरे पर गुस्सा भी था, घबराहट भी। यही वजह थी कि सब खामोश बैठे थे। उसने कहा, आज पहली बार मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ गया है। क्या यह मुमकिन नहीं कि आप खलीफा के इस पैगाम को नजरअंदाज कर दें? उसके नायब सालार अल नासिर ने कहा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इसी कोशिश में मसरूफ हूँ, लेकिन इल्जाम की नौयत देखो जो मुझ पर आयद किया गया है। मैंने उसके हरम की एक लड़की अगवा करवाई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे। उसने मेरी तौहीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम बल्कि धमकी कासिद की जबानी भेजी है। वो मुझे बुला लेता, मेरे साथ बराह रास्त बात करता। बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, मैं फिर भी यही मशवरा दूंगा कि अपने आप को ठंडा कीजिए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ क्या वाकई हरम से कोई लड़की अगवा हुई है? ये झूठ मालूम होता है। उसे पता चल गया होगा कि मैंने खुतबे में से उसका नाम निकलवा दिया है। इसके जवाब में उसने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर कि मैंने उसके हरम की लड़की को अगवा किया है, इंतकाम लेने की कोशिश की है। सुल्तान अय्यूबी ने ईसा अल हक्कारी फकीहा से कहा, एक हुक्मनामा मिस्र की तमाम मस्जिदों के नाम जारी कर दो कि आइंदा किसी मस्जिद में खुतबे में खलीफा का जिक्र नहीं किया जाएगा। अल नासिर ने कहा, आप उसके यहाँ चले जाएं और उससे बात करें। उसे साफ अल्फाज में बता दें कि खलीफा कौम की इज्जत का निशान होता है, लेकिन उसका हुक्म नहीं चल सकता, खुसूसन उस सूरत हाल में जब हालात जंगी हैं और दुश्मन का खतरा बाहर से भी है और अंदर से भी मौजूद है। मैं तो यहाँ तक मशवरा दूंगा कि इसके मुहाफिज दस्ते की नफरी कम कर दें, सूडानी हबशियों की जगह मिस्री दस्ता रखें और उसके महल के अखराजात कम करें। मैं इसके नताइज से आगाह हूँ। हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा।
हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा किया है, खुदा जुल जलाल मुझे इस जिल्लत से भी बचा लेगा। दरबान अंदर आया, सबने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि सहरा के गश्ती दस्ते का कमांडार अपने 3 सिपाहियों के साथ आया है, वो 2 सूडानियों की लाशें लाए हैं। सबने दरबान की मदाखलत को अच्छी नजर से न देखा। उस वक्त सुल्तान अयूबी बड़े ही अहम और खुफिया इजलास में मसरूफ था, लेकिन सुल्तान ने दरबान से कहा, उन्हें अंदर भेज दो। सुल्तान अयूबी ने अपने दरबान से कह रखा था कि जब भी उसे कोई मिलने आए वो उसे इत्तला दे, और अगर रात उसे जगाने की जरूरत महसूस हो तो फौरन जगा ले। सुल्तान कोई बात और कोई मुलाकात इल्तवा में नहीं डाला करता था। ओहदेदार अंदर आया, उसका चेहरा गर्द से अटा हुआ और थका थका नजर आता था। सुल्तान अयूबी ने उसे बिठाया और दरबान से कहा कि इसके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आओ। ओहदेदार ने सुल्तान को बताया कि उसके गश्ती संतरियों ने 4 सूडानी हबशियों से एक मगविया लड़की को छुड़ाने की कोशिश की, 2 को तीरों से मार डाला, लेकिन वो लड़की को उठाकर भाग गए। ओहदेदार ने बताया कि संतरियों के बयान के मुताबिक लड़की खाना बदोश या किसी आम घराने की नहीं थी, वो बहुत ही अमीर लगती थी और उसने कहा था कि वो खलीफा की मिल्कियत है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मालूम होता है खुदा जुल जलाल मेरी मदद को आ गया है। वो बाहर निकल गया। कमरे में बैठे हुए सब हाकिम उसके पीछे चले गए। बाहर जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं। एक लाश पेट के बल थी, उसके पीठ में तीर उतरा हुआ था। दूसरी लाश की गर्दन में तीर पैवस्त था। पास 3 सिपाही खड़े थे। इन्होंने अमीर मिस्र को, जो उनका सालार आला भी था, शायद पहली बार देखा था। वो फौजी अंदाज से सलाम करके परे हट गए। सुल्तान अयूबी ने उनके सलाम का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनसे हाथ मिलाया और कहा, ये शिकार कहाँ से मार लाए हो मोमिनो? उस संतरी ने जिसने चट्टान से तीर चलाकर 2 आदमियों को मारा था, सुल्तान अयूबी को सारा वाकया पूरी तफसील से सुना दिया। सुल्तान अयूबी ने अपने मुशीरों से पूछा, क्या यह मुमकिन हो सकता है कि वो लड़की खलीफा की ही दाश्ता हो? अली बिन सफियान ने कहा, मालूम यही होता है। इनके खंजर देखिए। उसने 2 खंजर सुल्तान अयूबी को दिखाए। जिस वक्त सिपाही वाकया सुना रहा था, अली बिन सफियान लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने सूडान का कबायली लिबास पहन रखा था। कपड़ों के अंदर उनके कमरबंद थे, जिनके साथ एक खंजर था। ये खलीफा के हिफाजती दस्ते के खास साख्त के खंजर थे। इनके दस्तों पर कसर खिलाफत की मोहर लगी हुई थी। अली बिन सफियान ने कहा, अगर इन्होंने ये खंजर चोरी नहीं किए तो ये दोनों कसर खिलाफत के हिफाजती दस्ते के सिपाही हैं। ये कहा जा सकता है कि लड़की वही है जो खलीफा के हरम से अगवा हुई है और अगवा करने वाले खलीफा के मुहाफिजों में से हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा कि लाशें उठवाओ और खलीफा के पास ले चलो। पहले यकीन कर लिया जाए कि ये वाकई खलीफा के मुहाफिजों में से हैं। अली बिन सफियान ने कहा और वहां से चला गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अली बिन सफियान के साथ कसर खिलाफत का एक कमांडार आ गया। उसे दोनों लाशें दिखाई गईं। उसने फौरन पहचान लिया और कहा, ये दोनों मुहाफिज दस्ते के सिपाही हैं। गुज़श्ता 3 रोज से छुट्टी पर थे। इनकी छुट्टी 7 दिन रहती थी। सुल्तान अयूबी ने पूछा, कोई और सिपाही भी छुट्टी पर थे? 2 और हैं। क्या वो इनके साथ छुट्टी पर गए थे? कमांडार ने जवाब दिया, इकट्ठे गए थे। और एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, ये सूडान के ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो खूंखारी में मशहूर है। इनमें फिरौनों के वक्त की कुछ रस्में चली आ रही हैं। ये कबीला हर 3 साल बाद एक जश्न मनाता है। ये एक मेला होता है जो 3 रात और 3 दिन जारी रहता है। दिन ऐसे मुकर्रर करते हैं कि चौथी रात चांद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी जाते हैं जिनका इस कबीले के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ अय्याशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों की खरीदो फरोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। इस मेले से 1 माह पहले ही इर्द गिर्द बल्कि काहिरा तक के लोग जिनकी बेटियां जवान हो गई हों, होशियार और चौकस हो जाते हैं। वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश भी इस इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़कियां अगवा होती हैं और इस मेले में फरोख्त की जाती हैं। ये चारों सूडानी इसी मेले के लिए छुट्टी पर गए थे। मेला 3 रोज बाद शुरू हो रहा है। क्या इनके मुताल्लिक ये कहा जा सकता है कि खलीफा के हरम की लड़की इन्होंने अगवा की होगी? अली बिन सफियान ने पूछा। कमांडार ने जवाब दिया, मैं यकीन से नहीं कह सकता। ये कह सकता हूँ कि इन दिनों में इस कबीले के लोग जान का खतरा मोल लेकर भी लड़कियां अगवा करने की कोशिश करते हैं। और ये खूंखार इतने हैं कि अगर किसी लड़की के वारिस मेले में चले जाएं और अपनी लड़की लेने की कोशिश करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लड़कियों के गाहकों में मिस्र के अमीर, वजीर और हाकिम भी होते हैं। मेले में ऐसे आर्जी कहबा खाने भी खुल जाते हैं जहां जुआ, शराब और औरत के शैदाई दौलत लुटाते हैं। इस जश्न की आखिरी रात बड़ी पुरस्रार होती है। किसी खुफिया जगह एक नौजवान और गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की को कुर्बान किया जाता है। ये किसी को भी मालूम नहीं कि लड़की को कहां और किस तरह कुर्बान किया जाता है। ये काम उनका एक मजहबी पेशवा, जिसे हबशी खुदा भी कहते हैं, करता है। उसके साथ बहुत थोड़े से खास आदमी और 4-5 लड़कियां होती हैं। लोगों को लड़की का कटा हुआ सर और खून दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये कबीला पागलों की तरह नाचता और शराब पीता है। खलीफा ने मुहाफिज दस्ते के नाक में दम कर रखा था। तमाम तर मुहाफिज दस्ता धूप में खड़ा था।
सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी। इस दस्ते को सुबह खड़ा किया गया था। कमानदारों और ओहदेदारों को भी न खाने की इजाजत दी गई थी, न पानी पीने की। रज्जब बारहा आता और ऐलान करता था कि लड़की मुहाफिजों की मदद के बगैर अगवा नहीं की जा सकती थी। जिस किसी ने अगवा में मदद की है वो सामने आ जाए, वरना तुम्हें यहीं भूखा और प्यासा मार दिया जाएगा। अगर लड़की खुद बाहर गई होती तो तुम में से किसी न किसी ने जरूर देखी होती। इन धमकियों का कुछ असर नहीं हो रहा था। सब कहते थे कि वो बेगुनाह है। खलीफा रज्जब को टिकने नहीं दे रहा था। उसने रज्जब से कहा था कि मुझे लड़की का अफसोस नहीं, परेशानी यह है कि ये जो इतने कड़े पहरे से लड़की अगवा कर सकते हैं वो मुझे भी कत्ल कर सकते हैं। मुझे ये सबूत चाहिए कि लड़की को सलाहुद्दीन ने अगवा कराया है। रज्जब ने ही अगवा का बहतान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर थोपा था, मगर खलीफा उसे कह रहा था कि सबूत लाओ। रज्जब सबूत कहां से लाता? उसकी जान पर बन गई थी। वो एक बार फिर मुहाफिज दस्ते के सामने गया। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। वो कई बार दी हुई धमकी एक बार फिर देने ही लगा था कि दरवाजे पर खड़े संतरियों ने दरवाजे खोल दिए और ऐलान किया कि अमीर मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। बड़े दरवाजे में सुल्तान अय्यूबी का घोड़ा दाखिल हुआ। उसके आगे 2 मुहाफिज सवारों के घोड़े थे। 8 सवार पीछे थे, एक दाएं और एक बाएं था। उनके पीछे सुल्तान अय्यूबी के हाकिम और मुशीर थे। इनमें अली बिन सुफियान भी था। रजब ने खलीफा को इत्तला भेज दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है। सबने देखा कि सुल्तान अय्यूबी के उस जुलूस के पीछे 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक सीधी दूसरी उल्टी। तीर अभी तक लाशों में उतरे हुए थे। इन लाशों के साथ वो 3 शुतर सवार थे जिन्होंने इन हबशियों को मारा था। खलीफा बाहर आ गया। सुल्तान अय्यूबी और उसके तमाम सवार घोड़ों से उतरे। सुल्तान अय्यूबी ने उसी एहतराम से खलीफा को सलाम किया जिस एहतराम का वो हकदार था। झुककर उससे मुसाफा किया और उसका हाथ चूमा। मुझे आपका पैगाम मिल गया था कि मैं आपके हरम की लड़की वापस कर दूं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं आपके 2 मुहाफिजों की लाशें लाया हूं। ये लाशें मुझे बेगुनाह साबित कर देंगी और मैं हुजूर की खिदमत अक़दस में ये गुजारिश करना जरूरी समझता हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आपकी फौज का सिपाही नहीं है। जिस खिलाफत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वो उसका भेजा हुआ है। खलीफा ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर भांप लिए। इस फातिमी खलीफा का जमीर गुनाहों के बोझ से कराह रहा था। वो सुल्तान अय्यूबी की बारोब और पुरजलाल शख्सियत का सामना करने के काबिल नहीं था। उसने सुल्तान अय्यूबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें अपने बेटों से ज्यादा अजीज समझता हूँ सलाहुद्दीन, अंदर आओ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरी हैसियत अभी मुल्जिम की है। मुझे अभी सफाई पेश करनी है कि मैं अगवा का मुल्जिम नहीं हूँ। खुदा जुलजलाल ने मेरी मदद फरमाई है और 2 लाशें भेजी हैं। ये लाशें बोलेंगी नहीं। इनकी खामोशी और इनमें उतरे हुए तीर गवाही देंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जुर्म का मुजरिम नहीं है जो कसर खिलाफत में सरजद हुआ है। मैं जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो लाशों की तरफ चल पड़ा। खलीफा खिंचा हुआ उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर 400-450 नफरी का मुहाफिज दस्ता खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने लाशें उठवाकर उस दस्ते के सामने रख दी और बुलंद आवाज से कहा कि 8-8 सिपाही आगे आओ और लाशों को देखकर बताओ कि ये कौन है। पहले कमांदार और ओहदेदार आए। उन्होंने लाशें देखकर उनके नाम बताए और कहा, ये हमारे दस्ते के सिपाही हैं। उनके बाद 8 सिपाही आए। उन्होंने भी लाशों को देखकर कहा कि ये उनके साथी हैं। 8 और सिपाही आए, फिर 8 और आए। इसी तरह 8-8 सिपाही आते रहे और बताते रहे कि ये लाशें उनके फुला साथियों की हैं। खलीफा ने कहा, सलाहुद्दीन, मैंने मान लिया है कि ये लाशें कसर खिलाफत के 2 मुहाफिजों की हैं। मैं इससे आगे सुनना चाहता हूँ कि इन्हें किसने हलाक किया है। सलाहुद्दीन ने उस गश्ती संतरी से जिसने उन्हें हलाक किया था कहा कि अपना बयान दोहराए। उसने सारा वाकया खलीफा को सुना दिया। वो खत्म कर चुका तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खलीफा से कहा, लड़की मेरे पास नहीं लाई गई। वो सुडानी हबशियों के मेले में फरोख्त होने के लिए गई है। खलीफा खसियाना हुआ जा रहा था। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा कि वो अंदर चले। सुल्तान अय्यूबी ने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस लड़की को जिंदा या मुर्दा बरामद करके आपके हुजूर हाजिरी दूंगा। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि हरम में एक ऐसी लड़की का अगवा जो तोहफे के तौर पर आई थी और जो आपकी मनकूहा बीवी नहीं दाश्ता थी, मेरे लिए जर्रा भर अहमियत नहीं रखती। खुदावंद ताला ने मुझे इससे अहम फराइज सौंपे हैं। खलीफा ने कहा, मेरी परेशानी ये नहीं कि एक लड़की अगवा हो गई है। असल परेशानी यह है कि इस तरह लड़कियां अगवा होने लगी तो मुल्क में कानून का क्या हशर होगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, और मेरी परेशानी यह है कि सल्तनत इस्लामिया अगवा हो रही है। आप ज्यादा परेशान न हो। मेरा शोबा सुराग रसानी लड़की को बरामद करने की पूरी कोशिश करेगा। खलीफा सुल्तान अय्यूबी को जरा परे ले गया और कहा, सलाहुद्दीन, मैं एक अरसे से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। मैं नजमुद्दीन अय्यूब जो तुम्हारे वालिद साहब थे उनका बहुत एहतराम करता हूँ।
मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जर्रा भर एहतराम नहीं है और मुझे आज बताया गया है कि जामे मस्जिद के खतीब अमीरुल आलिम ने ये गुस्ताखी की है कि खुतबे से मेरा नाम हटा दिया है। मुझे रज्जब ने बताया है कि मैं इसे इस गुस्ताखी की सजा दे सकता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारी शह पर ऐसा तो नहीं किया? सुल्तान अयूबी ने कहा कि मेरी शह पर नहीं, मेरे हुक्म पर उसने खलीफा का नाम खुतबे से हज़फ किया है। सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि हर खलीफा का नाम खुतबे से हटा दिया गया है जो आपके बाद आएगा और जो उसके बाद आएगा। खलीफा ने पूछा, क्या ये हुक्म फातिमी खिलाफत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है? मुझे शक है कि यहाँ अब्बासी खिलाफत लाई जा रही है। सुल्तान अयूबी ने कहा, हुजूर बहुत बूढ़े हो गए हैं। कुरान ने शराब को इसीलिए हराम किया है कि इससे दिमाग माऊफ हो जाता है। सुल्तान ने जरा सोचकर कहा, मैंने फैसला किया है कि कल से आपके मुहाफिज दस्ते में रद्द बदल होगा और रज्जब को मैं वापस लेकर आपको नया कमानदार दूंगा। खलीफा ने कहा, लेकिन मैं रज्जब को यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं हुजूर से दरखास्त करता हूँ कि फौजी मामलात में दखल देने की कोशिश न करें। सुल्तान अयूबी ने कहा और अली बिन सुफियान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो 5 हबशी मुहाफिजों को साथ लिया रहा था। अली बिन सुफियान ने कहा, ये 5 उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मैंने इस दस्ते से मुखातिब होकर कहा कि इस कबीले के कोई आदमी यहाँ हो तो बाहर आ जाएं। ये 5 सफों से बाहर आ गए। इनके मुतालिक मुझे इनके कमानदार ने बताया है कि परसों से छुट्टी पर जा रहे थे। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। लड़की के अगवा में इनका हाथ हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने रज्जब को बुलाकर कहा, कल यहाँ दूसरा कमानदार आ रहा है, आप मेरे पास आ जाएं। मैं आपको मंजनीकों की कमान देना चाहता हूँ। ये सुनते ही रज्जब के चेहरे का रंग बदल गया। अब कसर खिलाफत सुल्तान अयूबी के ज़ेर नगी थी।